दिस इज नीट 2019 सेट P1 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 is the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called. This meeting was called for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during initial days of lactation, is very essential for imparting immunity to the newborn infant because it contains immunoglobulin A. Grass leaves curls inward during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. तो देखिए ये ड्राई वेदर के टाइम पे डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो कर्ल हो जाते हैं एंड ये कर्लिंग बेसिकली ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स होती है। शॉर्टर एंड लोंगर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। शॉर्टर आर्म होती है पी आर्म एंड लॉन्ग आर्म होती है क्यू आर्म। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन इज। तो इसके लिए हमें ट्राइपाल्मिटिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड दैट फॉर्मूला इज C51H98O6। तो अब देखिए जब ट्राइपाल्मिटिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तो इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड बना देते हैं 102 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 98 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड साथ में कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो अब देखिए आरक्यू कैलकुलेट करते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड दैट इज 102 एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इट इज 145। तो इट इज 0.7। ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is commercial blood cholesterol lowering agent? It is statin. Match the following structure with their respective location in organs. फर्स्ट है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर की कवरिंग है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पैनक्रियाज में है। ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। तो ये हो जाता है सीक्वेंस 3 4 देन 1 एंड देन 2। 3 4 1 2 is option number 3. Which of the following is most important cause for animals and plants being driven to extinction? तो जो भी एनिमल्स और प्लांट्स खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉजेस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? बॉडी का थर्मोस्टैट होता है हाइपोथैलेमस। कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स: organ system level of organization, bilateral symmetry, true coelomates with segmentation of body. Select the correct option of animal group which possess all the above characters. First option देखिए Annelida, then Arthropoda and Chordata. तो इन तीनों में ये तीनों characters पाए जाते हैं, so this is correct. Select the correct sequence of organs in alimentary canal of cockroach starting from mouth. ऑप्शन नंबर 1 देखिए फेरिंक्स, देन ईसोफेगस, क्रॉप, गीजर्ड, इलियम, कोलोन, रेक्टम। बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो अमंग दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, both of these are responsible for greenhouse effect. Which of the following muscular disorder is inherited? Muscular dystrophy, this is a inherited disorder. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in specific direction. In humans, these cells are mainly present in. तो देखिए ciliated epithelial cells present होते हैं bronchioles और fallopian tubes में. Next, match the column 1 with column 2. First, P wave. P wave represent करती है depolarization of arteria. QRS complex, it represent depolarization of ventricles. T wave represent repolarization of ventricles, and reduction in size of T wave, it represent coronary ischemia. इस्केमिया होता है reduced blood flow और कोरोनरी इस्केमिया मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन में अगर ब्लड का फ्लो कम है, दैट इज कोरोनरी इस्केमिया। तो इसका सीक्वेंस बन जाता है 4 1 2 एंड 3।
4, 1, 2, 3 is option number 1. Which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Biosphere reserve, wildlife sanctuary, botanical garden, sacred grove. Among these botanical garden, this is ex situ conservation method. Next, in a species, the weight of newborn ranges from 2 to 5 kg. 97% of newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survives, whereas 99% of infant born with weight 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg dies. Which type of सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? ओके, तो देखिए ये बोल रहा है कि जो 2 से 5 किलो के बच्चे हैं, ओके, 2 से 5 किलो तक के बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से जो 3 to 3.5 वाले हैं वो तो बचते हैं, जो 2 से 2.5 वाले हैं वो भी मर जाते हैं, और 4.5 से 5 किलोग्राम के हैं वो भी मर जाते हैं। तो मतलब बीच वाले सिर्फ रहते हैं, इन दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों एक्सट्रीम्स की डेथ हो जाती है। तो जब भी बीच वाले सरवाइव करते हैं, दैट काइंड ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ phases of cell cycle is, among these it is G1 S, G2 M. This is correct sequence. Option number 4. Next, how does steroid hormone influence the cellular activities? देखिए स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो अपना काम खुद से करते हैं, मतलब खुद अंदर जाके न्यूक्लियस के पास, डीएनए के पास जो भी रिसेप्टर्स है उनसे बाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, करेक्ट है ये। नेक्स्ट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, करेक्ट। देन लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनते, गोल्जी apparatus से बनते होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। Which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? Okay, first ovary develops into fruit, सही है। Zygote develops into embryo, central cell develops into endosperm, ovule develop into embryo sac, no, this is wrong. ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होते हैं। देन कॉन्केनेवलिन ए इज, कॉन्केनेवलिन ए ये एक लेक्टिन है, ऑप्शन नंबर 3। इट इज बेसिकली अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये करता क्या है, मतलब एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आरबीसी को एग्लूटिनेट कर देता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट is essentially required for growing microbes on large scale for industrial production of enzymes? तो देखिए अगर किसी भी चीज की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी होती है, हमने एक चीज पढ़ी हुई है बायोरिएक्टर, इसे यूज किया जाता है। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ग्रोइंग microbes on large scale is bioreactor. Consider the following statements. First, coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. Second, a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. Select the correct statement. तो देखिए इन दोनों में से अब ये पूछ रहे हैं बहुत, ए एंड बी ट्रू, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए एंड बी फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज करेक्ट, बट बी इज फॉल्स। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कोएंजाइम और मेटल आयन जो कि टाइटली बाउंड होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। यहाँ बोल रहा है इट इज एपो एंजाइम, दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन 2 देखिए, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। Purines found both in DNA and RNA are एडेनिन एंड गुआनिन, ये दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं।
Select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system. Okay. Testis, epididymis, vasa efferentia, रेटे टेस्टिस बिल्कुल गलत है ये. नेक्स्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, रेटे टेस्टिस. ओके. देन वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस. ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, मैच द होमोनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज. ओके. तो देखिए होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस का जो ब्रेन साइज है दैट इज 650 टू 800 सीसी. होमो नेंडरथल इनका 1400 सीसी होता है. होमो इरेक्टस 900 सीसी एंड होमो सेपियंस 1350 सीसी. तो सीक्वेंस देख लीजिए, 3 4 1 एंड 2. 3 4 1 एंड 2. इट इज ऑप्शन नंबर 3. Variations caused by mutations as proposed by Hugo de Vries. ऐसी वेरिएशन जो कि ह्यूगो डी व्राइज ने बताई थी, दे आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन डीएनए. ओके. तो डीएनए एब्सेंट होता है एक तो लाइजोसोम्स में और वैक्यूल्स में. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेमी ऑटोनोमस है, इनका डीएनए खुद का होता है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेल्प एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही है. तो ये निकल जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. Due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban area are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to. Okay. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ऑप्शन नंबर 2. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक. करेक्ट है ये. नेक्स्ट, in male grasshopper 50% of sperms have no sex chromosome. बिल्कुल सही. grasshoppers का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर X0 एंड XX. X0 जो है दीज आर मेल्स. तो मेल्स में 50% आप देख रहे हैं, these are not having sex chromosomes. Next, in domesticated fowls, sex of progeny depends on the type of sperm rather than egg. Fowls में, fowls मतलब birds आ जाते हैं. Birds में जो progeny का sex है वो sperm पे depend करता है rather than egg. No. Birds में अलग होता है, female heterogametic होती है, इसलिए female पे depend करता है. Their system is ZW, ZZ type. ZW female होती है. तो answer is third. Next, DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with. It can be achieved by treatment with chilled ethanol. Select the correct group of biocontrol agents. बायोकंट्रोल एजेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको यूज करके पेस्ट स्पीशीज को इरेडिकेट किया जा सकता है. तो इनमें से बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis. Select the incorrect statement. First, inbreeding increases homozygosity. Correct है. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animal. Correct. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. ये wrong है. Inbreeding select नहीं करती harmful genes को. It eliminates. तो हमसे पूछा यही क्या था? Which is incorrect. Option 3 is incorrect. Match the following organism with the products they produce. First is lactobacillus. Lactobacillus produces curd. Saccharomyces cerevisiae, it is brewers and bakers yeast. तो बेकिंग में यूज करते हैं, ब्रेड मेकिंग में यूज करते हैं. Aspergillus niger. Aspergillus niger को यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड में. देन Acetobacter aceti, एसिटिक एसिड. तो सीक्वेंस हो जाएगा 2 4 3 and 5. That is option number 2. What is the direction of movement of sugar in phloem? Sugars का movement bi-directional होता है. Option number 4.
In some plants, female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is called as parthenogenesis. Persistent nucellus in seed is known as. जो nucellus seed में रह जाता है, that is called as perisperm. What map unit or centimorgan is adopted in the construction of genetic maps? Okay, genetic maps को construct करने के लिए जो मैप यूनिट अडॉप्ट किया जाता है दैट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस between genes on chromosome representing 1% crossing over. Option number 3. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole it is 150 ml. Okay. तो देखिए कार्डियक आउटपुट इट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, ये होता है. कार्डियक आउटपुट ये बता रहा है 5 लीटर है, मतलब 5000 ml लिख सकते हैं हम. हार्ट रेट हमें कैलकुलेट करना है. मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो डायस्टोलिक वॉल्यूम है 100, सिस्टोलिक वॉल्यूम है 50. तो ये हो जाता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई 100 माइनस 50 इज 50. तो हार्ट रेट आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 50. इट इज इक्वल टू 100. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट. थायोबैसिलस को यूज करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन. ओके, तो देखिए कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा लूप ऑफ एनले होता है नेफ्रॉन का, जैसे ही नीचे जाते हैं जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनले की, वहां पे एक्वापोरिन्स होते हैं जो कि पानी को बाहर निकाल देते हैं. जैसे ही पानी बाहर निकला तो जो फिल्ट्रेट था वो हाइपरटोनिक हो जाएगा. तो मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन किडनी, ये जो लूप ऑफ हेनले सारा इनर मेडुला में प्रेजेंट होता है. जैसे ही यहाँ पे फिल्ट्रेट जा रहा होता है, पानी निकल जाता है तो हाइपरटोनिक बन जाता है फिल्ट्रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन. करेक्ट है. Enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. This is wrong. ETS के जो enzymes होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो enzymes होते हैं, they are present in inner membrane of mitochondria. Next, xylem translocates what? तो देखिए हमें पता है जाइलम जो है वो पानी को भी ट्रांसलोकेट कर सकता है, मिनरल सॉल्ट्स को भी कर सकता है, नाइट्रोजन और कुछ हार्मोन्स को ट्रांसलोकेट करता है. ऑप्शन नंबर 4. सेल्स इन जी नॉट फेज. जी नॉट फेज में सेल्स जो है वो सेल साइकिल को सस्पेंड कर देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज? First is annual ring is combination of spring wood and autumn wood produced in year. Correct. Differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue, early and late wood respectively. सही है. Activity of cambium depends upon variation in climate. Okay. Then annual rings are not prominent in trees of temperate region. ये wrong है. टेम्परेट रीजन के ट्रीज की जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं. नेक्स्ट, which of the following ecological pyramid is generally inverted? Among these, pyramid of biomass in sea is generally inverted. Placentation in which ovule develop on inner wall of ovary or in peripheral part. ऐसी प्लेसेंटेशन को कहा जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन. ऑप्शन नंबर 3. Which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbons in atmosphere? ये कहती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल.
Which of the following contraceptive method do involve a role of hormone? Okay. First is lactational amenorrhea, then pills, emergency contraceptive. Then barrier method, lactational amenorrhea, pills. Copper T pills, emergency contraceptives, pills, emergency contraceptive, barrier method. तो देखिए इनमें से लैक्टेशनल एमेनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये तीनों ही हार्मोन इन्वॉल्व करते हैं. नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml. टाइडल वॉल्यूम है 500 ml and ERV expiratory reserve volume is 1000 ml. Okay, what will be the expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? Residual volume है 1200 ml. तो हमें पूछा गया है ERC expiratory reserve capacity. expiratory capacity बोल लीजिए कि क्या होगी. expiratory capacity is tidal volume प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक पर्सन मैक्सिमम एक्सपायर कर सकता है, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. इट इज इक्वल टू 500 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 1500 ml. What is the fate of the male gametes discharged in the synergid? First, one fuses with egg, other degenerate in the synergid. No, all fuses with egg. One fuse with egg, other fuse with synergid nucleus. One fuse with egg, other fuse with central cell nuclei to form endosperm. What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plant? Okay. कौन सी जगह है जहाँ पे फ्लावरिंग इंडक्शन की के लिए फोटो पीरियड रिसेप्शन होती है. ओके, लाइट रिसेप्शन होती है. इट इज लीव. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लीनियस. तो मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका और साथ में अगर ऑथर का नाम दे दिया जाए, ये लीनियस ने बताया था कि इस तरह से नेम को रिप्रेजेंट करना होता है. ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट, following statements describe the characteristics of enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. First, enzyme cut DNA molecule at identified position within DNA. Endonuclease है तो within DNA correct है. Restriction enzyme है मतलब particular identified position पे cut लगाएगा. Next, the enzyme binds DNA at specific site and cuts only one of the two strands. This is wrong. ये दोनों strands को भी काट सकता है. From evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in. ऐसा पहली बार टेरिडोफाइट्स में देखा गया था. In Antirrhinum, a red flower was crossed with white flower and F1 generation produced pink flowers. When pink flowers were self, F2 generation showed white, red, and pink. Choose the incorrect statement from the following. First is experiment does not follow the principle of dominance. Then pink color in F1 is due to incomplete dominance. Ratio of F2 is 1 by 4 red, 2 by 4 pink, 1 by 4 white. Law of segregation does not apply in this experiment. तो पूछा क्या गया which is incorrect statement. तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं हो रहा. दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय. इट इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेस. सिक्स्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड करना. हेक्सो मतलब 6, काइनेस वो एंजाइम जो फॉस्फेट ऐड करता है. तो ग्लूकोज की सिक्स्थ पोजीशन पे अगर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए, इट बिकम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. देन ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय. हीरोइन को सिंथेसाइज किया जाता है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग
IUD, intrauterine device. It is Progestasert and LNG-20. इसको LP से याद रख सकते हैं आप. Then a gene locus has two alleles, A capital and small. If the frequency of dominant allele is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in the population? Okay. पहले पूछा गया होमोजाइगस डोमिनेंट का, तो ए का स्केयर कर दो बस, ये हो जाएगा 0.16. तो ए स्केयर होमोजाइगस डोमिनेंट तो याद आता है. देन हमें पता है P plus Q is equal to 1 according to Hardy-Weinberg equilibrium. P is dominant, P की वैल्यू दी है 0.4, तो 0.4 plus Q is equal to 1, तो Q आ जाता है 1 minus 0.4, 0.6. तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हो जाती है 0.6 का स्केयर कर दीजिए 0.36. देन हमें निकालना है हेट्रोजाइगस भी निकालना है, तो ये हो जाता है 2PQ, यानी कि 2 कैपिटल है स्मॉल है, मतलब 2 into 0.4 multiply 0.6, इट इज 0.48. तो अब ऑप्शंस देख लीजिए. ऑप्शन नंबर 3 कैपिटल ए 0.16, then heterozygous is 0.48, then homozygous recessive is 0.36. So third is correct. Which of the following is true for golden rice? Okay, golden rice, first देखिए, it is vitamin A enriched with a gene from daffodil. Then it is pest resistant with a gene from Bacillus thuringiensis. No, वो बीटी कॉटन थी. It is drought tolerant developed from agrobacterium. No, it has yellow grains because of gene introduced from primitive variety of rice. ये भी गलत है. जो golden rice है, it is vitamin A enriched variety of rice, और ये vitamin A का जो gene है, it was obtained from daffodil. So first option is correct. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because its embryo is immature, it has obligate association with mycorrhizae, it is very hard, it has very hard seed coat, its seed contain inhibitors that prevent germination. तो देखिए पाइनस की जो सीड है वो फंजाई के बिना जर्मिनेट नहीं कर सकती. नहीं कर सकती मतलब एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, इसके बिना ये रह नहीं सकती. और अगर किसी भी बड़े प्लांट का किसी फंगस के साथ एसोसिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजल एसोसिएशन. ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? Okay, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जेनेटिक कोड हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में नियरली यूनिवर्सल होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का उठा लीजिए चाहे ह्यूमन बीइंग का उठा लीजिए. Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? Okay. Among these, gonorrhea, genital warts, genital herpes, and chlamydiasis. Okay. Genital herpes is not completely curable. It is caused by herpes simplex virus. Next, which of the following statement is incorrect? First, viroids lack a protein code. Next, viruses are obligate parasite. Infective constituent in viruses is the protein code. ये गलत है. ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग. इसका प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शियस नहीं होता, इसका जो जीनोम होता है वो इन्फेक्शियस होता है. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, फर्स्ट है पाइला. पाइला के पास रेड्यूला होता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर, रेड्यूला इज प्रेजेंट. नेक्स्ट, बॉम्बिक्स. बॉम्बिक्स ये क्या है? एक आर्थ्रोपोड है. इट हैज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स. देन प्लूरोब्रैकिया. प्लूरोब्रैकिया हैज कॉम्ब प्लेट्स. सिलेंट्रेट का मेंबर है ये. देन टीनिया प्लेटीहेल्मिन्स. इट हैज फ्लेम सेल्स. सीक्वेंसेस 3 4 2 1. 3 4 2 1 is option number 2.
Expressed sequence tags, EST, refers to it refers to genes expressed as RNA. Next, which of the following statement is incorrect? First है morels and truffles are edible delicacies. Correct है बिल्कुल. Then claviceps is a source of many alkaloid and LSDs. Correct. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. Again correct. Yeast are filamentous bodies with long thread-like hyphae. Okay. ये गलत है. Filamentous bodies with long thread-like hyphae. No. Long hyphae नहीं होते. Next, match column 1 with column 2. Saprophyte. Saprophyte, parasite, lichen and ये क्या है mycorrhiza. ओके तो देखिए सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. देन पैरासाइट लिव्स ऑन अदर लिविंग प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स. Then lichens, symbiotic association of algae and fungi. Mycorrhiza, symbiotic association of fungi with plant root, higher plant root. Sequence is 2, 3, 4, 1. Option number 4 is correct. Which of the following glucose transporters is insulin dependent? Okay. Insulin dependent transporter होता है GLUT4. GLUT4 stand for glucose transporter 4. It is insulin dependent. Next, which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft? Okay. जो भी ग्राफ्ट्स होते हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, CMI. Use of an artificial kidney during hemodialysis may result in nitrogenous waste buildup in body. No. आर्टिफिशियल किडनी यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट एक्यूमुलेट ना हो, उसको निकाल दिया जाए. नेक्स्ट, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस. अगेन नो. फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस यूज कर रहे हैं इसको. रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम GIT. तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी जब भी यूज की जाती है इस टाइम पे कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, रिड्यूस RBC प्रोडक्शन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. जो किडनी होती है इसका एक काम होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करना. अब क्योंकि नेचुरल किडनी ये कर सकती है बट आर्टिफिशियल नहीं, तो आर्टिफिशियल किडनी जब यूज कर रहे हैं तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, मतलब RBC की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी. सो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ऑप्शन C and D, that is third here. Which of the following statement is correct? Cornea is external, transparent, protective, proteinaceous covering of eyeball. Cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself. Cornea is convex, transparent layer which is highly vascularized. Cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion of eye. ये सबसे correct appropriate option है. Next, frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome is a measure of distance between genes was explained by. देखिए ये बोल रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन है इसका डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी. दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय अल्फ्रेड स्टूटिवेंट. Match the following genes of lac operon with their respective products. तो देखिए फर्स्ट है आई जीन. आई जीन इज इनहिबिटर जीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है. इज अ हाउस कीपिंग जीन, हमेशा सिंथेसाइज होता है. नेक्स्ट जेड जीन. जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. फिर आ जाता है ए जीन, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है. वाई जीन परमीएज बनाता है. सीक्वेंस देखिए 3, 1, 4 and 2. 3, 1, 4 and 2 is option number 3. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? Flowering induce करने के लिए ऑक्सिन एंड इथाइलिन कैन बी यूज्ड.
Identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. ओके, गॉबलेट सेल्स की सेक्रीशन हेल्प करती है जीआईटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज. ऑप्शंस देख लीजिए. इनमें से ट्राइकोडर्मा को यूज किया जाता है प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक. जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम के पास ना तो सीव ट्यूब्स होती हैं और ना ही कंपेनियन सेल्स होती हैं. एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस. एग न्यूक्लियस में से सेकंड पोलर बॉडी कब निकलती है? ये होता है जब स्पर्म एग न्यूक्लियस के अंदर जस्ट एंटर हुआ होता है, एग के अंदर एंटर हुआ होता है, बट इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती अभी. सो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन. Under which of the following condition will there be no change in reading frame of following mRNA? क्या पूछा गया है? Will there be no change? ये mRNA का फ्रेम है. देखिए, हमें ये याद रखना है, अगर कोई एक बेस ऐड हुआ है या दो ऐड हुए तो चेंज आता होता है, बट अगर 3 बेसिस ऐड हो गए हैं तो पूरा का पूरा एक कोडोन आ गया, तो उसमें उस केस में चेंज नहीं आता होता. तो अब ऑप्शन देखिए. इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन, एक बेस ऐड हुआ है. नेक्स्ट, डिलीशन ऑफ जी, एक डिलीट हुआ है. देन इंसर्शन ऑफ ए एंड जी, दो ऐड हुए हैं. लास्ट देखिए, डिलीशन ऑफ जी जी यू, 3 डिलीट हुए हैं, मतलब एक पूरा कोडोन डिलीट हुआ है. इसकी वजह से फ्रेम में कोई शिफ्टिंग नहीं आएगी. So option number 4 is correct here. The concept of omnis cellula e cellula regarding cell division was first proposed by. This concept was proposed by Rudolf Virchow. What triggers activation of protoxin to active BT toxin? प्रोटॉक्सिन को एक्टिव बीटी टॉक्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? बैसिलस thuringiensis में इन बोल वॉर्म. ओके, ये होता है इन अल्कलाइन पीएच ऑफ गट. जो इंसेक्ट इसको खा रहा है उसके गट के पीएच में ये होता है, अल्कलाइन पीएच में. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द causative एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड confirmatory टेस्ट. सो टाइफाइड इज caused by साल्मोनेला टाइफीमरियम इसका पूरा नाम है, एंड टेस्ट यूज करते हैं विडाल टेस्ट. ऑप्शन 4. What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development? Gynecomastia and sterile. Masculine development, muscles develop हो जाती हैं. Gynecomastia मतलब development of mammary gland. Mammary gland फीमेल्स में भी होते हैं, मेल्स में भी होते हैं, बट मेल्स के केस में वो कम डेवलप्ड होते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि मेल्स में भी मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया. एंड स्टेराइल ऑल्सो. तो ये सारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं. पोलीब्लेंड इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव टू बी गुड मटेरियल फॉर. पोलीब्लेंड को यूज किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. ऑप्शन नंबर 3. Which of the following methods is most suitable for disposal of nuclear waste? Shoot the waste into space, bury the waste under Antarctic ice cover, dump the waste within rocks under deep ocean. Bury the waste within rocks deep below the earth's surface. Among these, fourth option is correct. Deep below the earth's surface जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है उसको बरी कर दिया जाता है. दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद रिस्पेक्टिव डिजीज. फर्स्ट देखिए, इंसुलिन. इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलिटस. डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज दिस. देन थायरोक्सिन. थायरोक्सिन गोइटर करता है. कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स लीड्स टू एडिसन्स डिजीज. देन ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक्रोमेगाली हो जाती है. सीक्वेंस देखिए, 5, 4, 1 एंड 3. 5, 4, 1 एंड 3 is option number 3.
Then last question is select the correct option. First, 8th, 9th and 10th pair of ribs articulate directly with the sternum. No. 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Wrong. Each rib is a flat, thin bone. And all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. Again, wrong. There are 7 pair of vertebro-sternal. Okay. 3 pair of vertebro-chondral and 2 pair of vertebral ribs. ये बिल्कुल correct है. Option number 4 is the answer.